भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ऑस्ट्रिया के दौरे पर थे। यहां पर उन्होंने कई मसलों पर चर्चा की और जिसमें से एक था आतंकवाद। एक इंटरव्यू में जयशंकर ने पाकिस्तान को जमकर धोया और यूरोप को समझाया कि आतंकवाद पूरी दुनिया की समस्या है। इंटरव्यू में एंकर ने जब इस बात पर एतराज जताया कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए आतंकवाद का केंद्र बिंदु जैसे शब्द का प्रयोग क्यों किया, तो जयशंकर ने अपनी ही स्टाइल में इसका जवाब दिया। जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान वही देश है जिसने भारत की संसद और मुंबई पर हमला किया, जिसने होटल और पर्यटकों को निशाना बनाया, जो हर दिन घुसपैठ के लिए आतंकियों को भेज रहा है। जयशंकर ने कहा, अगर आप अपनी सीमा को नियंत्रित कर रहे हैं जहां पर खुले में आतंकी शिविर चल रहे हैं और वह भी सेना की देखरेख में, ऐसे में क्या आप मुझे ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि पाकिस्तान को वाकई नहीं मालूम कि वहां क्या हो रहा है? Before you said you're a diplomat, but several weeks ago you called Pakistan, your neighbor, the epicenter of terrorism. Well, I did it again today without using the word Pakistan. Yes, and this doesn't sound very diplomatic, does it? No, because you're a diplomat doesn't mean you're untruthful. I could use much harsher words than epicenter. So believe me, considering what has been happening to us, I think epicenter is a very diplomatic word, because this is a country which has attacked the Parliament of India some years ago, which attacked the city of Mumbai, which went after hotels and foreign tourists, which every day sends terrorists across the border. But of so course sometimes not, when but we of talk, course not as a country. well, if you control your sovereign space, which I believe they do, if the terrorist camps operate in broad daylight in cities with recruitment and financing, can you really tell me that the Pakistani state doesn't know what's going on? Especially if they're being trained in military level combat tactics. So, when we speak about judgments and principles, why don't I hear sharp European condemnation of these practices which have been going on for multiple decades? Does the world have to be concerned that there someday will be a war between India and Pakistan? I think the world has to be concerned that there is terrorism going on, and the world often looks away. The world often feels it's not my problem because it's happening to some other country. I think the world needs to be concerned about how sincerely and strongly it takes up the challenge of terrorism. But has the world to be concerned about the future war between India and Pakistan? I think the world needs to be concerned about terrorism. That's because, what you said. Yes, sure. Because look, if you pose it the way you do, that's like giving a free pass to terrorism, saying, let's worry about the next consequence of it. I am worried about the terrorism. और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन से भारत के रिश्तों को लेकर कहा कि हमारा चीन के साथ सीमा पर तैनाती को लेकर समझौते हमारे थे, लेकिन चीन ने उन समझौतों का सम्मान नहीं किया, इसलिए तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि LAC को एक तरफा न बदलने को लेकर समझौता था, लेकिन चीन ने इसे एक तरफा बदलने की कोशिश की। Might in the near future intervene militarily in Taiwan. Do you share this concern? I think there's a larger concern which is based on our experiences. The concern is that we had agreements with China not to mass forces in our border areas. And they have not observed those agreements, which is why we have the currently tense situation that we do. We had an agreement not to unilaterally change the line of control, which they have tried to unilaterally do that. So there is, I think, a perception that we have which derives directly from our experiences. Now, where else the status quo may change or not change, I would hesitate as a foreign minister to predict publicly. I may have my own views and assessments. But I certainly can share my experience, and my experience is that written agreements were not observed, that we have seen levels of military pressure which in our view has no justification.
China would say the opposite. They would say that India had not obeyed different agreements. But obviously, you see no, it I think it's difficult for China to say that for this reason. The record is very clear because today, there's a lot of transparency. You have satellite pictures. If you see who moved the forces to the border areas first, I think the record is very clear. So it's very difficult for China to say what you suggested they could. तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दोनों मामले पर, एक तो जिस तरह से आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान की जो अपनी कार्यशैली रही है और जिस तरह से वो आतंकवाद को पनाह देता रहा है, उसे सींचता रहा है, और साथ ही साथ इंडिया चाइना बॉर्डर पर जो एक टेंस सिचुएशन उसको लेकर बात की। हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र वांगू जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, जयशंकर ने बहुत ही खुलकर इस बात को रखा है, बल्कि सवाल के जवाब में उन्होंने बहुत ही पूरे एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत सारे उन्होंने एग्जाम्पल्स पेश कर दिए कि किस तरह से पाकिस्तान के बारे में अगर वो कहते हैं कि वो आतंकवाद को सींचता है और हिंदुस्तान के खिलाफ लगातार उसे इस्तेमाल करता है। तो क्या समझा जाए कि अपनी इस फॉरेन पॉलिसी को लेकर, और खासतौर से जयशंकर ने बिल्कुल उनका स्टैंड क्लियर है कि पाकिस्तान किस तरह से आतंकवाद की पुष्टपनाही कर रहा है? बिल्कुल विशाल, जिस तरह का स्टेटमेंट विदेश मंत्री एस जयशंकर का सामने आया है, और ये पहला स्टेटमेंट नहीं है। इससे पहले भी ऑस्ट्रेलिया दौरे पर उन्होंने बहुत से ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हैं जिसमें उन्होंने इशारे में पाकिस्तान पर हमला किया है। लेकिन एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि आप पाकिस्तान को एपी सेंटर ऑफ टेरर क्यों कहते हैं, तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उसको जस्टिफाई किया ये कहते हुए कि पाकिस्तान वही मुल्क है जिन्होंने भारत के संसद पर हमला कराया, वही मुल्क है जिसने मुंबई जैसे हमले को अंजाम दिया, और वही मुल्क है जो रोजाना आतंकियों को इस पार, सीमा पार से इस तरफ उनकी घुसपैठ कराता है और आतंकी हमलों को अंजाम देता है। और खुलेआम दिन दहाड़े वहां पर ट्रेनिंग कैंप्स शहरों में चला जाता है पाकिस्तान में। लेकिन पूरी दुनिया, खासतौर से यूरोपियन देश जो है वो इससे नजर फेर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि यूरोपियन देश जो है, बहुत से ऐसे देश हैं जो सीधे तौर पर इस आतंकवाद के मुद्दे को लेकर पाकिस्तान को कड़े शब्दों में एड्रेस नहीं करते हैं, पाकिस्तान को खरी खोटी नहीं सुनाते हैं, क्योंकि उनको लगता है ये प्रॉब्लम किसी एक मुल्क का है। लेकिन असल में आतंकवाद जो है पूरी दुनिया के लिए, पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। तो ये स्टेटमेंट जयशंकर का बहुत अहम इसलिए भी है क्योंकि उस वक्त आ रहा है कि हम देख रहे हैं कि रजौरी में अब से 2 दिन पहले क्या हुआ, कल रजौरी में क्या हुआ। अब ये भी जानते हैं कि उसे आज से कुछ दिन पहले जो एनकाउंटर हुआ था सिद्रा में, उसमें भी जो 4 आतंकी मारे गए थे वो सब चारों के चारों जैश के थे और वो पाकिस्तानी नेशनल थे। तो ऐसे में जाहिर तौर पर जो चैलेंज सीमा पार टेररिज्म का है, सीमा पार आतंकवाद का है, वो गहरा चैलेंज है। इसी को लेकर विदेश मंत्री जयशंकर से पूछा गया था, तो उन्होंने कहा कि अगर हम बात करते हैं भारत और पाकिस्तान की जंग की, इसके सवाल के जवाब में विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा जंग बहुत दूर की बात है, लेकिन पहला कंसर्न है आतंकवाद का, जिसको लेकर सभी मुल्कों को एकजुट होना होगा। बिल्कुल। तो एक तरह से जयशंकर जो है इस बात को दुनिया के कई मुल्कों में बार बार ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान अगर दहशतगर्दी का सहारा लेकर हिंदुस्तान को डिस्टर्ब करना चाहता है तो ऐसा नहीं है कि उसके सिर्फ हिंदुस्तान परेशान है, बल्कि आतंकवाद एक ऐसा मर्ज है जो बिल्कुल कैंसर के जैसा है। इससे आने वाले दिनों में दूसरे देशों को भी इससे प्रभावित होना पड़ सकता है। दूसरा एक अहम सवाल यहां पर है जो उन्होंने चाइना को लेकर कहा है एक सवाल के जवाब में कि जो हमारा रिटर्न अग्रीमेंट था उसे चाइना ने ऑब्जर्व नहीं किया और नतीजा यह है कि सिचुएशन थोड़ी जो है वो टेंस हो गई है। इसे कैसे देखा जाए जयशंकर के इस बयान को चाइना के बारे में? देखिए, अगर हम इसको कंटेक्स्ट समझना चाहें तो जो एंकर हैं जिन्होंने सवाल पूछा है विदेश मंत्री जयशंकर से, उन्होंने पूछा कि क्या आप मानते हैं कि ताइवान पर आने वाले दिनों में चीन हमला कर सकता है। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि बतौर विदेश मंत्री वो इस पर कयास नहीं लगा सकते, लेकिन अपने एक्सपीरियंसेस जरूर शेयर कर सकते हैं। भारत अपने साथ जो भारत के जो एक्सपीरियंस है उसको लेकर भारत ये जरूर कह सकता है कि चीन जो है वो समझौतों का सम्मान नहीं करता है। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि देखिए, जिस तरह से
चीन के साथ समझौता था सीमा पर कि वो एमास नहीं करेगा, यहाँ की वहां पे बड़ी तादाद में सेना को डिप्लॉय नहीं किया जाएगा, चीन ने उसका उल्लंघन किया। और वहीं यह भी तय था कि LAC को एक तरफा इसमें बदलाव नहीं किया जाएगा, चीन ने यह भी किया। और जब एंकर ने पूछा कि ये तो चीन भी आरोप लगा सकता है, तो इस पे विदेश मंत्री ने कहा था कि रिकॉर्ड बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि अब सैटेलाइट इमेजेस है, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है, उससे ये साफ हो जाता है, पूरी ये बहुत ट्रांसपेरेंट है कि इससे ये साफ हो जाएगा कि पहले किसने डिप्लॉयमेंट आगे करी, पहले किसने तैनाती आगे बढ़ाई। तो जाहिर तौर पर चीन इसमें कल्प्रिट है, लेकिन ये एक एक्सपीरियंस भारत का है जो भारत दुनिया के साथ शेयर कर सकता है। लेकिन चाइना ताइवान पे हमला करेगा नहीं करेगा, इस पे भारत की तरफ से स्टेटमेंट नहीं आया जाहिर तौर पर। लेकिन ये जरूर कहा गया है कि चीन जो है वो अपने जो समझौते हैं उनका समझौते के मुताबिक वो अमल नहीं कर रहा है। जी, पहले चीन के नए विदेश मंत्री का भी जी जी शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए और इस जानकारी के लिए। तो शैलेंद्र वांगू हमारे सहयोगी और एडिटर नेशनल ब्यूरो, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जो विदेश मंत्री जयशंकर का जो स्टैंड है वो वही स्टैंड है जो भारत का रहा है। और विदेश मंत्री जयशंकर ने पहली बार ऐसा ये नहीं कहा है पाकिस्तान को लेकर या चाइना को लेकर, खासतौर से कहा है कि पाकिस्तान जो है दहशतगर्दी का नेटवर्क जो उसकी पुष्टपनाही करता है। और आज उससे दूसरे देशों को यह समझना है कि ऐसा नहीं है कि उससे किसी एक मुल्क यानी भारत को नुकसान हो रहा है तो हो रहा है, हमें उससे क्या, बल्कि ये बाद में दूसरे मुल्कों को भी इसका जो दंश है वो झेलना पड़ सकता है। इसलिए जरूरी है कि इसकी गंभीरता को समझा जाए। और इसी के साथ फिलहाल एक छोटा सा यहां पर ब्रेक लेंगे, जल्द हाजिर होते हैं।